हम पढ़ेंगे लेविटिकस 8 चैप्टर। लेविटिकस 8 चैप्टर, लेवीय व्यवस्था 8 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, बाद में पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा वचनों की दोस्ती हम में कर, गहरी दोस्ती, ऐसी दोस्ती जो सारे रहस्य भेद के साथ हम एक दूसरे में मिले हुए रहे। अब फादर गॉड, वचन के अलावा हमारा कोई सहारा, कोई आश्रय स्थान नहीं। हमें वचन की एक मन होकर चलने की सामर्थ्य दे। अब फादर गॉड, हमसे कुछ मत छिपा। जो तू हमें रहस्य देना चाहता है वो हमें मिलता रहे और हमारा जीवन बदलता रहे, रोज के रोज, पल पल, हर एक दिन, हर एक मोमेंट। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। लेविटिकस 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। मोसेस consecrated Aaron and his sons, their sin offering, their burnt offering, the ram of consecration, the place and time of their consecration. First verse. And the Lord spake unto Moses, saying, Take Aaron and his sons with him, and the garments and the anointing oil, and a bullock for the sin offering, and 2 rams, and a basket of unleavened bread, and gather thou all the congregation together unto the door of the tabernacle of the congregation. And Moses did as the Lord commanded him, and the assembly was gathered together unto the door of the tabernacle of the congregation. And Moses said unto the congregation, This is the thing which the Lord commanded to be done. And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water, and he put upon him the coat, and girded him with the girdle, and clothed him with the robe, and put the ephod upon him, and he girded him with the curious girdle of the ephod, and bound it unto him therewith, and he put the breastplate upon him. Also he put in the breastplate the Urim and the Thummim, and he put the mitre upon his head, also upon the mitre, even upon his forefront, did he put the golden plate, the holy crown, as the Lord commanded Moses. And Moses took the anointing oil, and anointed the tabernacle, and all that was therein, and sanctified them. And he sprinkled thereof upon the altar 7 times, and anointed the altar and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them. And he poured off the anointing oil upon Aaron's head, and anointed him to sanctify him. And Moses brought Aaron's sons, and put coats upon them, and girded them with girdles, and put bonnets upon them, as the Lord commanded Moses. And he brought the bullock for the sin offering, and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the bullock for the sin offering, and he slew it. And Moses took the blood, and put it upon the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured the blood at the bottom of the altar, and sanctified it, to make reconciliation upon it. And he took all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the 2 kidneys and their fat, and Moses burned it upon the altar. But the bullock and his hide, his flesh and his dung he burnt with fire without the camp, as the Lord commanded Moses. And he brought the ram for the burnt offering, and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram, and he killed it. And Moses sprinkled the blood upon the altar round about, and he cut the ram into pieces, and Moses burned the head and the pieces and the fat,
And he washed the inwards and the legs in water, and Moses burnt the whole ram upon the altar. It was a burnt sacrifice for a sweet savour, and an offering made by fire unto the Lord, as the Lord commanded Moses. And he brought the other ram, the ram of consecration, and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram, and he slew it. And Moses took off the blood of it, and put it upon the tip of Aaron's right ear, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot. And he brought Aaron's sons, and Moses put off the blood upon the tip of their right ear, and upon the thumbs of their right hands, and upon the great toes of their right feet. And Moses sprinkled the blood upon the altar round about. And he took the fat and the rump, and all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and their fat, and the right shoulder. And out of the basket of unleavened bread that was before the Lord, he took one unleavened cake, and a cake of oiled bread, and one wafer, and put them on the fat and upon the right shoulder. And he put all upon Aaron's hands, and upon his sons' hands, and waved them for a wave offering before the Lord. And Moses took them from off their hands, and burnt them on the altar upon the burnt offering. They were consecrations for a sweet savour. It is an offering made by fire unto the Lord. And Moses took the breast, and waved it for a wave offering before the Lord, for of the ram of consecration. It was Moses' part, as the Lord commanded Moses. And Moses took off the anointing oil and of the blood which was upon the altar, and sprinkled it upon Aaron, and upon his garments, and upon his sons, and upon his sons' garments with him, and sanctified Aaron and his garments, and his sons and his sons' garments with him. And Moses said unto Aaron and to his sons, Boil the flesh at the door of the tabernacle of the congregation, and there eat it with the bread that is in the basket of consecrations, as I commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it. And that which remaineth of the flesh and of the bread shall ye burn with fire, and ye shall not go out of the door of the tabernacle of the congregation in 7 days, until the days of your consecration be at an end. For 7 days shall he consecrate you, as he had done this day, so the Lord hath commanded to do, to make an atonement for you. Therefore shall ye abide at the door of the tabernacle of the congregation day and night 7 days, and keep the charge of the Lord, that ye die not, for so I am commanded. So Aaron and his sons did all things which the Lord commanded by the hand of Moses. लेव्य व्यवस्था 8 अध्याय पहले वचन से, हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अखमीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ, और वही सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा
पहनाया और कटिबंध लपेटकर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पट्टे से एपोद को बांधकर कस दिया। और उसने चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुम्मीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सबका भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाये समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटिबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाये पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया। परंतु बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह होम बलि के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अंतड़िया और पाँव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेढ़े को जो संस्कार का मेढ़ा था समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिनी जांघ ये सब लेकर अलग रखे। और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। तब मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया और संस्कार के मेढ़े में से मूसा का भाग यही हुआ, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वही खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है
कि हारून और उसके पुत्र उसे खाए, और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक, मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसे ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने किया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, ये वचन, ये पवित्र आत्मा वचन, जो भेद रहस्य इसके अंदर छिपे हुए हैं, जिसको पिता परमेश्वर हम केवल आत्मा से समझ सकते हैं, हम विनती करते हैं, अगर हमें तू इसके लायक मानता है, अगर तू इसके काबिल हमको मानता है, तो मेरे पिता पवित्र आत्मा इसकी गहरी बात, जो आत्मा में ये रास्ता कहाँ पहुँच जाता है और क्या होता था उस समय ऐसा करने के बाद, मेरे परमेश्वर, वो समय, वो आत्मा का जगह, वो आत्मा में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या स्थापित होता था, ये सब पिता हमें सिखाने की हम तुझसे विनती करते हैं। अगर तू हमें उसके लिए काबिल माने तो निश्चित प्रभु पवित्र आत्मा ये बातें हमें सिखाना और समझाना, हमें समझने की आशा रखते हैं हम। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं, ये गहरी दोस्ती हमारी वचन के अंदर, वचन के साथ बनी रहे, ऐसी विनती करते हैं आपसे। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में वचन के आधार से हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हम पढ़ेंगे 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान। आज कौन से अध्याय है हम देखेंगे। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 18 चैप्टर 12 वर्स से 23 वर्स, सैम्स 21 चैप्टर 22 चैप्टर। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 12 वचन से 23 वचन। भजन संहिता 21 अध्याय 22 अध्याय। हम अकेले में बैठकर अपने व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में इसे पढ़ना है। जब ये हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हमें सुधार लाने के लिए काम करेगा, और ऐसा होने के लिए हमने समय देना है परमेश्वर को, और वो अकेले का समय, एकांत में बैठकर, पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में हम पढ़ रहे होंगे, तब वो समय पवित्र आत्मा को मिलेगा, ताकि वचन के अंदर से वो हमें सुधार दे सके। ज़रूरी नहीं सभियों ने यही प्रकार से पढ़ना है, आपको पवित्र आत्मा जैसा अगुवाई करता है उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। निश्चित हमने इतना ही करना है कि हमने परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार से हमको बताता है कि हमने पढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से वो हमको सिखाना चाहता है, उस तरह से हमने उसको अगुवाई को मान लेना है। और हमने ये 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान करना है। निश्चित परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करना चाहिए, सिखाना चाहिए, और पवित्र आत्मा का निश्चित हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर गॉड। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि जो भी वचन आप हमें सिखाते हो, जैसे भी हमारे जीवन के ऊपर हम करते हैं, मेरे खुदा परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार वो लाभदायी होता है, हमें जीवन बदल कर मिलता है, हमारा आनंद बढ़ता है, शांति बढ़ती है, हमारे जीवन के सारे अच्छे समय हमको प्राप्त होते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हमारा हर एक माहौल, हर एक आनंद, हर एक फैसले आप ही के द्वारा पूरे होते जाए। हम कभी भी परमेश्वर हिम्मत हारने वाले ना बने मेरे खुदा परमेश्वर, चाहे जो भी हो खुदा परमेश्वर। अगर शैतान का राज्य है तो शैतान के राज्य को तोड़ने की सामर्थ्य भी आपके अंदर है। इसके लिए खुदा परमेश्वर
हम कोई ऐसे समय को ना डरे खुदा जिसके कारण पिता हमारा मन विचलित हो जाएगा, या हमारा मन पिता परमेश्वर अशुद्ध बातों के कारण पिता कोई भी कारण से परमेश्वर से हटने की कोशिशें करेगा। पिता हम ऐसे कोई कमज़ोर करने वाले अवस्थाओं से पिता हम कभी लड़खड़ाने मत दीजिए। हमें पार होने वाली शक्ति दीजिए, हमें पार होने वाला आनंद दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।